Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. Walaikum Assalam, sir. Walaikum Assalam, sir. Walaikum Salam. Welcome to lecture 22. In this lecture, we will discuss chemical shift and some of the factors which affect the position of signal in NMR. So just to recap what we have learned up to now. Uh, so first we have discussed the phenomena of resonance, and then we talked about the position of peaks in NMR, which are called the chemical shift. And today we will explore this area a little bit more. So before we start, anybody want to ask any question from previous lectures? No, sir. Thank you. All right. So here is the chemical shift. So in the phenomena of resonance, we learned that the electron density around hydrogen atoms, they are actually screening or shielding the applied magnetic field. Therefore, those protons which are shielded, they experience very small applied magnetic field. So some of the magnetic field is not felt by those protons. Therefore, their Larmor frequency will also be lower. So we can practically draw a spectrum or a chart in which we can predict the the positions of different hydrogens. So let's start this side where we have 0 value, and here we have value 12, and I will tell you what these ppm mean in a little while. But just for the sake of understanding, let's assume that we know that this is the scale, and this scale is called chemical shift. Okay, so in this end, we have uh, very strongly shielded hydrogens. So this hydrogen is shielded a lot. Why? Because it has a lot of electron density, and applied magnetic field B naught is not felt as much as it should be. So some value of magnetic field will be less. So we can call this region as the shielded region. So this is shielded region. Okay. So when it is shielded, what will be the Larmor frequency? It will be low Larmor frequency, lower Larmor frequency. And if it is a lower Larmor frequency, we can assume that their resonance will take place at lower radio frequency. So here, this region is lower radio frequency. So lower radio frequency can also be called as the apofield region. ओके, तो ये डिफरेंट नाम यूज होते हैं जो सिग्नल इस साइड पे हमें अपीयर होते हैं. And at this end, we have a proton which has very small amount of electron density. So they are called de-shielded, because there is no shield of electron density in these hydrogen. So this is de-shielded region.
and here the proton have higher Larmor frequency. Why higher? Because the applied magnetic field is felt to great extent at this side, and so Larmor frequency will also be high. So higher Larmor frequency, and they will absorb or undergo resonance at high radio frequency. ओके, सो हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करेंगे तो इस साइड पे प्रोटॉन रेजोनेंस में आएंगे, और इनको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज ए डाउन फील्ड रीजन। तो ये आपने नोमेनक्लेचर याद रखना है। सो ये इसको शील्डेड रीजन भी कह सकते हैं, जो ज़ीरो वाली साइड पे है। इनको लोअर लार्मर फ्रीक्वेंसी होती हैं, यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, अब्जॉर्ब चाहिए होती है फॉर दी रेजोनेंस, और इनको अप फील्ड रीजन भी कहा जाता है। दूसरी साइड पे जहाँ पे स्क्रीनिंग वीक होती है उनको डी शील्डेड रीजन भी कहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड डाउन फील्ड रीजन। ओके, तो ये याद रखना है आपने। सो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, नाउ सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है इसको हमें, चूँकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन इन्वायरमेंट होती है हर प्रोटॉन की, तो हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ऐसी स्केल डेवलप करनी चाहिए जो अनएम्बिगुअस हो, स्पेशली जब हम कहते हैं कि लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है ये डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई फील हो रहा है प्रोटॉन के ऊपर। तो चूँकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, हो सकता है कि आज मैग्नेटिक फील्ड आपने जो इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जर्व किया है, तो टुमारो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्लाइटली डिफरेंट। So when magnetic field is different, then Larmor frequency will also be automatically different. तो इसलिए हम जब भी प्रोटॉन का सिग्नल लेते हैं तो we don't rely on the Larmor frequency. ओके, तो Larmor frequency की बजाय हमें कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए, एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट हमें फाइंड आउट करना चाहिए, सो दैट day-to-day changes in magnetic field should not affect the value of Larmor frequency, and the data coming from the different labs should also be similar. Okay, so for that one compound which is called tetramethylsilane, इसको एज ए रेफरेंस चूज किया जाता है। अच्छा, अब सिलिकॉन आपको पता है कि इट इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन कार्बन। ओके, सो जो नेचुरल इसका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है दैट इज़ टूवर्ड कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है दैट विल बी अगेन because the electrons are pumped by silicon in this carbon will not attract this electron density too much toward itself. तो रिजल्ट क्या होगा कि this hydrogen which is present in tetramethyl silane में ये होता है कि 4 methyl ग्रुप जो है सिलिकॉन के अराउंड सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये जो कार्बन है दैट इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच। व्हाई? बिकॉज सिलिकॉन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज पंपिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड कार्बन। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड हो जाएंगे तो दैट विल आल्सो बी शोन ऑन दिस हाइड्रोजन। सो प्रैक्टिकली TMS will be the most shielded hydrogen in typical molecules. with the few exception exist करती हैं, लेकिन हम typical molecule की बात कर रहे हैं। तो ये जब मोस्ट शील्डेड होगा
तो ये किस साइड पे अपीयर होगा, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? लेफ्ट साइड पे सर। लेफ्ट साइड पे। तो बेसिकली बाकी सारे मॉलिक्यूल इससे इससे कम शील्डेड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस मॉलिक्यूल विल स्टे एट द लेफ्ट साइड। तो ये अगर हम कहें कि दिस इज टीएमएस और बाकी सारे मॉलिक्यूल आपको इस साइड पे, राइट साइड पे किसी जगह पे सिग्नल देंगे। सो हमने इस पीक को रेफरेंस एक्सेप्ट कर लिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन ऑफ टीएमएस are compared with the frequency, Larmor frequency of the analyte proton. जो एनालाइट, फॉर एग्जांपल अगर आपका एनालाइट एसीटोन है तो एसीटोन के जो प्रोटॉन की जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है दैट इज कंपेयर्ड विद द लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस। तो अब ये बताओ लार्मर फ्रीक्वेंसी स्लो किसकी होगी, किसकी लो होगी लार्मर फ्रीक्वेंसी, टीएमएस की या एसीटोन की? सर किस एटम की बात कर रहे हैं आप इसमें, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से, कार्बन की या प्रोटॉन की? हाइड्रोजन की। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन। मैंने प्रोटॉन को सर्कल किया हुआ है ना। सर लार्मर फ्रीक्वेंसी कीटोन की ज्यादा होगी, कीटोन के प्रोटॉन की। इसकी ज्यादा होगी, दैट विल बी हाई फ्रीक्वेंसी। और ये आप कह रहे हैं ये लो होगी, उसकी यस सर। रीजन बता सकते हैं क्यों लो होगी और इसकी क्यों ज्यादा होगी? सर वो जिसकी लो होगी वो ज्यादा शील्डेड है और जो कम शील्डेड है उसकी ज्यादा होगी। वेरी गुड, क्योंकि ये शील्डेड है। शील्डेड क्यों है? क्योंकि इसके साथ जो एटम लगे हुए हैं दे आर पंपिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है ऑक्सीजन। It will pull electron first from carbon and this carbon will become slightly positive in character। और इस पॉजिटिव करेक्टर की वजह से इट विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन या फ्रॉम दिस कार्बन। तो इस पुलिंग की वजह से दिस हाइड्रोजन विल आल्सो बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड देन इट विल पुल इलेक्ट्रॉन इन टर्न फ्रॉम द हाइड्रोजन। सो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी सो दे विल बी लेस शील्डेड। सो लेस शील्डेड, तो लेस शील्डेड का मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लें कि जिस तरह सन होता है ना, सूरज, तो अगर ये शाइन कर रहा है एंड इफ देयर आर क्लाउड, तो और नीचे जो लोग यहाँ बैठे होते हैं, सो द पीपल हु आर ऑन द ग्राउंड they will experience less sun when there is a cloud. So the clouds are actually shielding the effect of sun. तो इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज शील्डिंग द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लेस होगा तो लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। लार्मर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी रेजोनेंस भी लो सिग्नल पे अपीयर होगी। सो अब हमें पास जो कंक्लूजन ये निकला कि TMS will be low frequency and analyte will be higher frequency. So what we do, we normally subtract this value. So we subtract the value of frequency of sample, यानी सैंपल के जो हाइड्रोजन है उसकी फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं TMS की फ्रीक्वेंसी पे। और ऑफ कोर्स ये कंप्यूटर करता है, so the system which is attached to the NMRs, and then we divide this difference over the applied magnetic field. Okay, so आपका जो NMR का जो मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी, वो टिपिकली मेगाहर्ट्ज में होती है और जो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का ये टिपिकली हर्ट्ज में होता है। राइट, मैं दोबारा कहता हूँ कि जो प्रोटॉन जो हमारा एनालाइट है उसके प्रोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS जो हमारा रेफरेंस है। और ये रेफरेंस डिफरेंस अमूमन हर्ट्ज में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेगा हर्ट्ज में होती है। तो जब आप हर्ट्ज ओवर मेगा हर्ट्ज करेंगे तो इस
यूनिट को हम ppm कहते हैं, पार्ट पर मिलियन, जिसको आप कहते हैं कि 1 पर्सन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन पर्सन, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज ए ppm यूनिट. Okay, so ppm is nothing, it is a ratio which tell that how much is something out of the millions of that things. ये क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. Okay, so the difference is normally very small, in the order of tens of thousands of hertz in NMR, and depend on the मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ये आपको मैंने बता दिया है कि ये डिफरेंस लेस होता है, और जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आ जाती है, जिसको हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं. तो टिपिकली ये वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, चाहे आप डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पे सिस्टम को रन कर रहे हैं, तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम. ओके, यहाँ एक एग्जांपल है. A particular hydrogen nucleus of a molecule show resonance at radio frequency. अब रेडियो फ्रीक्वेंसी जब आप ये लगाते हैं, अब ऑफ कोर्स अगर आप देखें ये हर्ट्ज में दी हुई है, इसको अगर आपने मेगा हर्ट्ज में कहना है तो आप कहते हैं 100.56 मेगा हर्ट्ज. इस मेगा हर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी जब आप इस हाइड्रोजन को देते हैं, इट अंडरगोस रेजोनेंस. When you have placed this nucleus in 100 megahertz, ये इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी. अगर TMS के हाइड्रोजन इसी सिस्टम में ये रेजोनेंस शो कर रहे हों 100.563 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियाई. आपने ये इसकी बतानी है कि केमिकल शिफ्ट क्या होगी. तो आप क्विकली करें, आपके पास 2 मिनट. सर 4.95 ppm आ रही है. आपने निकाल ली है? यस सर. कैसे? आपने पहले कोई लेक्चर नोट आपने पहले कहीं से लिए हुए हैं? नहीं सर, मैंने अभी की है. निकाले. ओके, गुड. चलें, इसको सॉल्व ऐसे करना है कि आप पहले फ्रीक्वेंसी लिखें जो हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है, और कोशिश करें कि उसको हर्ट्ज में रखें. अगर ये मेगा हर्ट्ज में भी दी हो तो आप उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लें. फिर आप TMS की फ्रीक्वेंसी लिखें जो कि हर्ट्ज में दी हुई है, और उसके बाद इनका डिफरेंस आप निकाल लें जो आपको 495 हर्ट्ज आ जाता है, और इसको आप फार्मूले पे लगाएं कि जो डिफरेंस है डिवाइड करें जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है, तो दैट विल गिव अस 4.59 हर्ट्ज. तो अब आपका जो सिग्नल है, अगर आप यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे 12 है, तो आपको 4 पॉइंट समथिंग पे यहाँ पे एक पीक मिलेगी जो कि इस प्रोटॉन की होगी. सो दैट इज योर NMR सिग्नल एट 4.95. ओके, क्वेश्चन. अच्छा, अब आप ये बताएं कि जब आपको स्पेक्ट्रम दिया हुआ हो, तो उस स्पेक्ट्रम में अगर आपके पास इस तरीके से 3-4 सिग्नल आते हैं, तो सबसे पहला क्या आपके पास आप रिजल्ट निकालेंगे? व्हाट डज दैट टेल यू? सर पीक्स की पोजीशन से सिलेक्ट करेंगे कि वो प्रोटॉन शील्डेड है या नहीं शील्डेड है. क्या है प्रोटॉन? शील्डेड है या कि नहीं शील्डेड है. चलें, वो तो आप, लेकिन इस वक्त आपको ये आइडिया होता है कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन, ओके, विच आर डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो हम ये कहते हैं कि दिस प्रोटॉन या दिस हाइड्रोजन या दिस सिग्नल इज डी शील्डेड, दिस इज मीडियम शील्डेड, एंड दिस इज मोस्ट शील्डेड. तो अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता है, मैं आपको बताता हूँ कि ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, या ये कार्बन कार्बोनिल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ऐसी कार्बन जिसके ऊपर 2 ऑक्सीजन लगी हुई है और फिर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है. तो आपका क्या गैस होगा कि इन तीनों में से अगर ये आपका हाइड्रोजन सिग्नल A है, ये सिग्नल B है, ये सिग्नल C है,
तो हमें जो CH है इसका सिग्नल कौन सा होगा? A होगा, B होगा, C होगा? सर इसका सर सिग्नल OH वाले का C होगा। OH वाले का C होगा और A किसका होगा? सर CH का। CH का। एक CH हो गया। ओके, अब ये देखो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें ना तो थोड़ी सी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई करें तो आपको पता है कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ना डीलोकलाइज्ड है। तो डीलोकलाइज होने के बाद इस ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो ये यस सर, पार्शियल एग्जैक्टली। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि ऑक्सीजन ऑल्दो इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, it is still carrying a positive charge, so electronegative, and on top of it it is positively charged। तो इसका मतलब ये है कि ये तो इस हाइड्रोजन को बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। ओके, सो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये C पे आएगा, आपका OH जो है ये मीडियम इंटेंसिटी होगा क्योंकि इसका जो लोन पेयर है दैट इज लोकलाइज्ड। तो आपने ये ऑक्सीजन के अंदर ये डिफरेंस रखना है कि जो लोकलाइज्ड ऑक्सीजन है दे विल अपीयर क्लोज टू जीरो, और जो डीलोकलाइज्ड ऑक्सीजन है वो अपीयर क्लोज टू दी 10 और 12। ऑलराइट, चलें जी नेक्स्ट। नाउ कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव जो शील्डिंग है ये इफेक्ट होती है? तो सबसे पहला इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज ए डायरेक्ट इफेक्ट। आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ लगा होगा तो वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्कैवेंज कर लेगा। एक चीज़ याद रखें कि केमिकल शिफ्ट से यहाँ मुराद हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट है, क्योंकि वी आर राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली द केमिकल शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ओके, तो जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वो हाइड्रोजन के साथ अगर अटैच है तो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देन वी हैव हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि H जो है ये sp3 कार्बन के साथ भी हो सकता है, दैट कैन बी विद sp2 हाइड्रोजन, दैट कुड बी विद sp हाइड्रोजन, सॉरी। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। sp3 ये है जो सैचुरेटेड कार्बन होती है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन। sp2 वो है जो डबल बॉन्ड के साथ आ रही है कार्बन, और sp वो है जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ रही है। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं जिसमें ये हाइड्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो सकती है। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट जो है ये केमिकल शिफ्ट को चेंज करता है। एक नया इफेक्ट है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, दैट इज a little bit I think that should be a new topic for you, but if it is already known, that we will try to uh, explain it in a better way. Okay, then hydrogen bonding, that also affect the chemical shift position, and lastly van der Waal effect. So basically any factor which can increase or decrease the electron density on a nucleus, or especially जो hydrogen nucleus है, that will cause a change in the chemical shift। ओके, तो ये 5 फैक्टर जो है ये आपने अच्छे तरीके से देखने होते हैं कि जब भी आपने मॉलिक्यूल को असाइन करना है। ओके, सो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, so that the degree of shielding depend on the electron density around the proton, and we know that higher the electron density on the proton, higher will be the shielding, and it will closer it will be to the TMS reference, and it will have the lower delta value। ये delta क्या है? Delta is the chemical shift। chemical shift का जो symbol है that is delta, और इसका यूनिट क्या है? ppm। ओके,
A nearby electronegative atom withdraw electron density due to -1. This is called inductive effect. Electron withdrawing inductive effect from the neighborhood of the proton, so that will cause de-shielding. For example, अगर आप compare करें CH जो methyl के proton हैं, so when methyl proton are attached with the fluorine, with chlorine, with bromine and iodine, then their chemical shift change from 4.26, which is for fluorinated methyl, to 3.05, which is for chlorinated methyl, and for brominated there will be 2.28 and 2.16 for the iodine containing methyl. So you can see that as the electronegativity of halogen increases, the value of chemical shift also increases. Okay. Now this effect is directly proportional to the distance between hydrogen and the electronegative atom. तो अगर डिस्टेंस जैसे मेथल है और उसके साथ क्लोरीन अटैच है, जो कि इस केस में, अगर आप देखें तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड का डिस्टेंस है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड के डिस्टेंस की वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट 3.05 जो है वो अपीयर होती है। लेकिन अगर इसके अंदर आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दें, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, this is connected with a carbon and this carbon is connected to a carbon and then this carbon is connected to a chlorine. Now you have a distance of 3 chemical bond between this hydrogen and electronegative atom. तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि उसकी केमिकल शिफ्ट लोअर हो जाएगी। ओके, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से विदड्रॉ करता है, और फिर ये कार्बन जो है वो नेक्स्ट कार्बन से ये विदड्रॉ करता है, एंड देन दिस कार्बन विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी डाइल्यूट हो जाता है जब तक आप इस हाइड्रोजन पे आते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इसमें एक कार्बन का और इजाफा कर दें और ये जो है 4-5 बॉन्ड पे चला जाए, तो दिस वैल्यू विल नॉट बी डिफरेंट देन द वैल्यू ऑफ CH4, क्योंकि अब उसके लिए ऐसा ही है कि एज इफ देयर इज नो हेलोजन एटम प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। तो इस हाइड्रोजन की जो केमिकल शिफ्ट है वो नॉर्मल जो sp3 कार्बन होता है उसके बराबर आ जाती है। ऑलराइट, क्वेश्चन चले। नाउ द सेकंड इफेक्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जैसे मैंने पहले बताया है कि इट कैन बी sp3, sp2 और sp, and for sp3 connected hydrogen, and of course that will be connected with most of the time with the carbon, so this carbon is sp3. So value, the chemical shift value of these hydrogens are typically between 0 to 2. अब आप इस रेंज को याद रखना शुरू कर दें, क्योंकि अब जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो ये वैल्यू आपको हेल्प करेगी, ये जो रेंज है कि आपको किस किस्म के हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ अटैच करने हैं। ओके, सो ऑल हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन, जो सैचुरेटेड कार्बन है, दे विल फॉल बिटवीन 0 to 2, और ऑफ कोर्स इसमें नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ओके, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो पाई इलेक्ट्रॉन। सो टिपिकली जो अल्केन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर आप मॉलिक्यूल देखते हैं जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन CH बॉन्ड हैं और CH3 आपके एंड पे यहाँ पे है CH3 हियर, सो ये सारे H हैं, तो इनकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो दे विल बी बिटवीन 0 to 2। ओके, तो इसमें आपने ये देखना है कि जो CH3 है दैट विल बी लोअर केमिकल शिफ्ट and CH2 will have higher chemical shift than the CH, जो टर्शरी कार्बन है,
इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर आप इसमें इस मॉलिक्यूल में देखें, वी हैव CH3 which will be like 0.9 for example 0.9 ppm, and CH2 जो है they will absorb at slightly higher frequency। ये किस वजह से? ये अनाइसोट्रोपी की वजह से है, वो उसको हम नेक्स्ट फैक्टर के तौर पे देखेंगे। So CH2 जो है that will be like 1.5 ppm। Okay, so any value which is less than 1 can be assigned to CH3, and any value which is between 2 and 1 that can be assigned to CH2 in this molecule. Okay, so that इसमें आपने ये देखना है कि ये जो साइक्लोप्रोपेन है दे आर हाईली स्ट्रेन्ड, और जिस तरह हमने IR में देखा था कि दे हैव मोर p character inside, and that will cause this hydrogen to have more s character, and then there are some other anisotropic effect। So जो साइक्लोप्रोपेन है इनकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है, ये क्लोज टू 0 आप कह सकते हैं। इवन मैथल जो होता है उससे भी नीचे होती हैं इनकी वैल्यू। ओके, नाउ अगर हाइड्रोजन आपका ऐसी sp3 कार्बन के साथ अटैच है जो इटसेल्फ किसी हेट्रो एटम के साथ जुड़ी हुई है, जैसे ओ मिथॉक्सी है या ओ मैथिलीन है, NCH2 है, तो आप ये देखें ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है जो खुद तो sp3 है, लेकिन ये कार्बन खुद ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो इसमें वही फैक्टर दोबारा आएगा जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंसीडर कर चुके हैं कि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम कार्बन, and then this carbon will pull more electron density than the normal carbon, and this hydrogen will be de-shielded। तो उस सूरत में इनकी वैल्यू जो है it can go above 2। तो इनकी वैल्यू 2 से अबव चली जाएगी। किस वक्त? जब ये ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ अटैच हो। ओके, नाउ sp2 हमें दो सूरत में मिलता है, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इनकी जो टिपिकल वैल्यू है जो कार्बन के साथ अगर अटैच है, एंड दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या अल्कीनिक हाइड्रोजन, दे विल बी टिपिकली बिटवीन 4.7 to 7। और अगर ये बेंजीलिक है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी है, बट दिस इज एरोमेटिक कार्बन डबल बॉन्ड, so this is delocalized, you know that it is slightly different than the single isolated double bond। तो ये जो हाइड्रोजन है ये 7 से 8 के दरमियान अब्जॉर्ब करते हैं। सो 4.5 से 7 ppm आपके अल्कीनिक हाइड्रोजन है, और बेंजीन का प्रोटॉन है दैट विल ऑलवेज अपीयर बिटवीन 7 and 8। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। अगर आपके मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग है तो इट विल गिव ए प्रोटॉन NMR सिग्नल in this region 7 to 8। if you don't see any signal in this region, that means there is no aromatic ring in the molecule। और अगर 4.5 और 7 के दरमियान कोई सिग्नल है तो that will tell you that there is a alkenic type of compound in the molecule। All right, now lastly sp जो कार्बन होती है दैट हैव ए मोर एस करैक्टर, ऑलमोस्ट 50% एस करैक्टर। तो एस करैक्टर जो होता है दैट इज लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैज इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। सो ये जो कार्बन आपकी अल्काइन के साथ अटैच होती है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ आती है, और उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है
that will appear between 2 to 3. अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जो अल्कीनिक डबल बॉन्ड है जहाँ पे sp2 है, ये हाइड्रोजन 4 से 7 है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे मोर एस करेक्टर है, मोर एस यहाँ पे लेस एस करेक्टर है, और sp3 में तो इवन लेस है। sp3 इज 25% एस करेक्टर, यहाँ पे 33% है, और यहाँ पे 50% एस करेक्टर है। सो क्वेश्चन, व्हाई दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू? क्योंकि यहाँ ये 2.3 का मतलब ये है कि दिस हाइड्रोजन इज शील्डेड, और 4 to 7 का मतलब ये है कि दिस इज लेस शील्डेड। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 है, यहाँ sp3 है, इट हैज अ मोर इंडक्टिव इफेक्ट देन द sp2, then why this is more shielded than this hydrogen? That can be explained only by anisotropy. Okay, तो ये बड़ा important question है कि why alkenic hydrogen absorb at higher radio frequency than the alkynic hydrogens. So this is anomaly, and to understand that anomaly we have to understand the phenomena of anisotropy. So anisotropy is actually a directional character, and that appear in molecule which have a pi electron system. So either double bond or triple bond. Okay, so so इसकी definition याद रखना है कि this is a directional phenomena. So in one direction we have a shielding effect, in other direction we have de-shielding effect. So it depends whether your hydrogen come in the shielding region or in de-shielding region. That is why we called the pi electron effect as the anisotropic effect. और ये सबसे बेहतरीन जो ऑब्जर्व होता है वो एसेटिलीन और एथिलीन के मॉलिक्यूल में होता है कि एसेटिलीन का मॉलिक्यूल although carbon atom of acetylene is more electronegative because of sp hybridization than the carbon of ethylene, but the value of acetylene is 2.35 and that of ethylene is 4.6, which is opposite to their electronegative effect, and that can be explained by the anisotropic shielding. इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल इस तरह का है कि दिस इज योर फैक्टर, कोई ऐसा यहाँ पे एटम बैठा हुआ है जिसकी वजह से कोई इफेक्ट पैदा हो रहा है, तो ये इफेक्ट जो है ना 2 रीजन पैदा करता है, एक शील्डेड रीजन पैदा करता है और एक उस रीजन के बाद ये भी शील्डेड है क्योंकि दैट इज ए शील्डेड कोन, दिस इज ए शील्डेड कोन, एंड ये जो रीजन है जो दूसरी साइड पे कोन पे आता है दैट कुड बी डी शील्डेड। तो अगर इस तरह का फिनोमिना पाया जाता है आपके मॉलिक्यूल में तो उसको हम कहते हैं कि डायरेक्शनल इफेक्ट। ओके, सो ये एनिसोट्रोपी कहलाती है। तो अब हमने देखना है कि एसिटिलीन में और एथिलीन में एक्चुअली होता क्या है। So anisotropy mean non-uniform magnetic field around the hydrogen. So when your molecule has a pi electron, then the chemical shift of hydrogen is affected differently in different regions. So the region can be divided into shielded and de-shielded region. And if your hydrogen happen to be in a shielding region, then its chemical shift will be lowered. And if it happen to be in de-shielding region, then its chemical shift will be higher. It will go toward large value of delta. ये clear हो गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good.
चले आप देखें कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है एंड वी हैव वन हाइड्रोजन which is attached very close to that double bond. Now you apply a magnetic field B naught. So with the application of this magnetic field, what will happen? We will have different magnetic field created in this molecule. First of all, the electron density around this hydrogen that will oppose this this applied magnetic field. आपको याद है कि इस magnetic field को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जिसको शील्डिंग होती है जिसकी वजह से उसको हमने B प्राइम से इंडिकेट किया और इसके बाद आपका जो हाइड्रोजन है दैट इज स्पिनिंग और उस स्पिन की वजह से ये खुद भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और इस मैग्नेटिक फील्ड से ये प्रेसिशन यहाँ पैदा होती है और इस प्रेसिशन से ये इसमें लार्मर फ्रीक्वेंसी आती है और जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके सो अब दूसरा इफेक्ट इस पे ये है, एक तो शील्डिंग इफेक्ट है जो इसको अपोज कर रही है, दूसरा ये कि इट इज अटैच्ड टू ए कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज so that will pull electron density and that will try to de-shield it. So electron इसको shield करना चाहते हैं लेकिन sp2 कार्बन की वजह से ये de-shielded हो जाएगी। And now the third thing, it has a neighboring double bond or double bond, you know that is two p orbitals which happen to be very close to each other and their phase are identical in one side so that their electron density they reinforce constructively in this region and result is two electron clouds, one above the plane of this double bond and other below the plane of this double bond. अब ये भी इलेक्ट्रॉन है और जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के अराउंड में है ये सर्कुलेट करके तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं, इसी तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन भी इसको सर्कुलेट करके तो इसको अपोज करेंगे। दे विल अपोज इन दी सेंटर। जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने सेंटर में इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, इसी तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा that will also oppose the applied magnetic field B now. Okay, now it is opposing in the middle, but if you see it that जैसे एक मैग्नेट में ये होता है कि उसकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो एक्चुअली एक सर्कुलर पाथ ट्रेवर्स करती हैं अराउंड द मैग्नेट। तो हम ये देखते हैं कि ये मिडल में तो अपोज कर रही हैं, यहाँ पे इसको देखें दैट इज अपोजिंग दैम, but when they try to come back and enter into the south pole, then what happen is that they are actually passing through this hydrogen और इस हाइड्रोजन में they are actually reinforcing the applied magnetic field. तो यहाँ पे ये इसको बजाय इसको अपोज करने के ये मैग्नेटिक लाइन जो है ये इस हाइड्रोजन पे मैग्नेटाइजेशन को इन्फोर्स कर रही है, उससे यहाँ पे लोकल मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगी। जब लोकल मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि इसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो फिर इसकी रेजोनेंस हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे होगी। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो इसका V जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, V ऑफ हाइड्रोजन, बट TMS रिमेन द सेम। और जब इनका डिफरेंस बिगर हो जाएगा, बिग डिफरेंस divided by the same magnetization, this power B naught, then what will happen? Delta, the delta value will be higher, will be large, और ये टिपिकली 4.5 से 7 ppm तक मूव कर जाती है। Okay, so once again the total magnetic field acting on hydrogen, अब अगर आप देखें तो उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ऑफ कोर्स वी हैव अप्लाइड दैट,
and then due to electron cloud around hydrogen, and that opposes the B naught. This is causing the shielding effect. The third is due to the neighboring pi electron, the pi cloud, and instead of opposing this magnetic field for this hydrogen, they happen to reinforce the B naught and cause the de-shielding effect. और जब आप इन सब को कंबाइन करते हैं, किनको कंबाइन करते हैं? द फैक्टर विच शील्ड द हाइड्रोजन एंड द फैक्टर विच de-shield the hydrogen, then ओके। अच्छा, अब यही चीज़ अगर आप अप्लाई करें, चलें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एसिटिलीनिक प्रोटॉन में ये जब जो पाई क्लाउड है जब ये सर्कुलेट करता है तो उसके बाद जो रीजन पैदा होते हैं, एक शील्डेड रीजन पैदा होता है और दरमियान में, जैसे मैंने पहले बताया है कि मिडल में ये इसको अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज अ शील्डेड रीजन इन द मिडल. So if any hydrogen happen to be in this side, that will be shielded, but any hydrogen which is lying in the de-shielded region, that will be giving the frequency, the larger frequency and larger delta value. Same is the case with aldehyde, जिसमें कार्बोनिल का हाइड्रोजन जो pi electron है, they circulate and they create a magnetic line of forces, and these magnetic line of force happen to reinforce the magnetic vector in the periphery, in the de-shielded region. Okay, so that result in the acetylenic hydrogens and aldehydic hydrogen to move to the very large chemical shift. So aldehyde की फॉर्म में ये 9.5 पे चला जाता है. अच्छा, आप मुझे कोई बता सकता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो हाइड्रोजन है दैट रिमेन अराउंड 4 to 7, जबकि जो एल्डिहाइड का है दैट मूव टू 9.5. why this है? Is from where this extra chemical shift come from? So the oxygen atom electronegative. Very good. Because it is close to oxygen, and that will pull electron density. It will have a powerful inductive effect. It will have a powerful sp2 effect, and all electron density will be moving toward oxygen. And then this is very naked type hydrogen, and plus the pi cloud that is reinforcing the magnetic vector in the periphery. Okay, question. चले, लेट्स मूव. एसिटिलीन की सूरत में क्या होता है? एसिटिलीन का प्रॉब्लम ये है कि इट हैज ए 2 डबल बॉन्ड, and these 2 double bonds are orthogonal. Orthogonal means that they are at a 90-degree angle to each other. तो इसमें अगर आप अल्कीनी जो आपके डबल बॉन्ड में अगर आपने देखा था तो एक ही पाई क्लाउड होता है, तो वो अगर आपका मैग्नेटिक वेक्टर इस तरीके से है तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है ये मॉलिक्यूल, और आपके ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दे कैन इजीली सर्कुलेट इन ए सर्कल विदाउट गोइंग थ्रू एनी एटम. लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें दो किसी भी एक फॉर्म में, अगर ये परपेंडिकुलर फॉर्म में अगर ये मॉलिक्यूल को आप कंसीडर करते हैं तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड तो सर्कल करता है, लेकिन दूसरा पाई बॉन्ड जो है ना ये वो प्रॉब्लम काज करेगा, क्योंकि उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप सर्कुलेट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लाइन गुजरते आपकी कार्बन से गुजरेगी. सो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन कैन पास थ्रू न्यूक्लियस. तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियस एक साइड पे रहते हैं, लेकिन एसिटिलीन की फॉर्म में आपकी जो सर्कुलर मूवमेंट है that will be perfect only if the clouds are moving in a cylindrical path around this sigma bond.
जिस तरह ये सिलेंडर बना हुआ है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन, rather they make a cylindrical shape when they move. Therefore, for for this molecule to have an isotropic effect, it has to come a perpendicular orientation. तो परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में आपके जो ये जो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी इन सिलेंड्रिकल पाथ एंड दे विल अवॉइड हिटिंग द न्यूक्लियर. Okay, in that case the magnetization again it will oppose the magnetic field in the middle, but when the line of magnetic field they come back in a circular path and join from the top, they happen to not to pass through any hydrogen. ओके, सो ये रीजन जो इस साइड पे जहाँ पे ये अप साइड पे मूव कर रहा है दैट बिकम द डी शील्डेड रीजन, जैसे आपने अल्कीन की फॉर्म में देखा. नाउ दीज हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन ए शील्डेड रीजन. तो ये फर्क जो है ये हमने एसिटिलीन में नहीं देखा था. एसिटिलीन में एथिलीन में, तो एथिलीन में ये हाइड्रोजन इस साइड पे रहते थे, मैग्नेटाइजेशन इस तरीके से बनती थी, तो ये मैग्नेटिक वेक्टर जो है इस हाइड्रोजन से पास होके गुजरता है, तो इससे ये मैग्नेटिक वेक्टर को इंक्रीज करता है, यहाँ पे इसको रीइंफोर्स करता है. जबकि यहाँ पे इस हाइड्रोजन को ये अपोज कर रहे हैं, ऊपर से भी इसको अपोज कर रहे हैं और नीचे से भी अपोज कर रहे हैं. तो दैट मीन दीज हाइड्रोजन आर शील्डेड. तो हम ये कह सकते हैं कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो डी शील्डिंग हुई थी दैट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एनाइसोट्रोपी. ओके, सो एसिटिलीन का जो सिग्नल है वो 4 से आगे नहीं जाएगा, इट विल रिमेन between 2 and 3 ppm. Okay, all right. Yes, sir. Question. Let's move on. Last anisotropic effect is seen in the aromatic ring. Remember I told you that the normal alkene they appear between 4.5 to 7, whereas aromatic proton they appear between 7 and 9. So that is also due to the anisotropic effect. So here there are 6 pi electron which are in a plane, and the movement of these electron under the influence of magnetic field is called the ring current. And this ring current में ये होता है कि ये जो इसके ऊपर एक donut shape electron cloud above and below that will be circulating, that is identical to a double bond. जैसे डबल बॉन्ड में above below हुआ था, उसी तरीके से यहाँ 3 double bond हैं, but we have a more electron here, so the effect will be powerful. Now look at very carefully that all hydrogens are located in a region where this magnetization is reinforcing from all directions. Okay, so ये हाइड्रोजन जो है सारे डी शील्डेड रीजन में है. Okay, so the ring current induces magnetic field, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, in the same direction as the applied magnetic field. Therefore, they will reinforce the magnet V naught. और ये मिडल वाला जहाँ पे इसका एरो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द शील्डेड रीजन. तो अगर कोई हाइड्रोजन इस शील्डेड रीजन में है तो उसकी वैल्यू ड्रॉप होती है, वो उसकी वैल्यू 7 से कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल ये जो
रीजन है दैट इज डीशील्डेड रीजन, एंड मिडल में जो ये पार्ट है दैट इज अ शील्डेड रीजन। तो अगर आप एक वेरी बिग मॉलिक्यूल जिसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है, इसको अगर देखें तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन पैदा होगी उसमें अगर आप देखें तो ये जो अंदरूनी हाइड्रोजन है, they are all lying in the region where they are opposing the applied magnetic field। अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से आप ड्रा करें और इसके जो इंटरनल हाइड्रोजन हैं वो यहाँ पे इस तरीके से लोकेट हों, अब इनके जब आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई करेंगे तो कुछ हाइड्रोजन जो है वो बाहर वाली साइड पे हैं जो यहाँ शो किए हुए हैं, कुछ हाइड्रोजन है जो इंटरनल है। तो अब जब आप इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो यहाँ इस तरीके से एक डिस्क ऊपर यहाँ पैदा होगी और एक डिस्क इसके नीचे होगी, और उससे जो मैग्नेटाइजेशन होगी दैट विल अपोज द इंटर मैग्नेटाइजेशन इन द इंटरनल साइड, बट इट विल रीइंफोर्स द मैग्नेटाइजेशन आउटसाइड। रिजल्ट क्या होगा कि ऑल हाइड्रोजन विच आर लाइंग आउटसाइड दे विल हैव ए लार्जर केमिकल शिफ्ट, लार्जर केमिकल शिफ्ट, और जो हाइड्रोजन इंटरनल हैं दे विल हैव स्मॉलर केमिकल शिफ्ट। और रीज़न क्या है कि जो एक्सटर्नल हाइड्रोजन है दे आर लाइंग इन द डीशील्डेड रीजन ऑफ द रिंग करंट, and the internal hydrogen are lying in the shielded region of the ring current. Okay, question. All right, now the summary. So anisotropy due to double bond, and it can also be present for the sigma bond, but the rule is the same for the double bond and for the single bond. And double bond or triple bond भी आप कह सकते हैं because that is also a pi. So space around a double bond or aromatic ring can be divided into two parts. So one part will be shielding and other part will be de-shielding. If your hydrogen are in the shielding region, they will be shielded and their chemical shift will be lower. And if they are in de-shielded region, they will be de-shielded and their chemical shift will be with the large chemical shift. Okay, boundary between shielded and de-shielded region resemble a surface of double cone, जिसको मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि ये एक कोन की तरह होती है। तो कोन के जो रीजन अंदरूनी रीजन है दे विल बी शील्डेड रीजन, और कोन के आउटसाइड डी-शील्डेड रीजन होते हैं। तो आपने ये देखना होता है कि ये हाउ यू हैव टू ड्रा द कोन। सो डबल बॉन्ड की फॉर्म में आप कोन यहाँ से ड्रा करेंगे मिडल ऑफ द डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में आप कोन यहाँ से ड्रा करेंगे। ये मैंने आपको बताया क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट विल बी अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड, जबकि डबल बॉन्ड और जो रिंग होती है दैट विल बी अलाइंड परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये आपने याद रखना है। ओके, नाउ सिग्मा, जो सिग्मा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, दैट कैन आल्सो कॉज द अनिसोट्रोपिक इफेक्ट। और इसमें अनिसोट्रोपी जो है वो आपने किसी भी डबल सिंगल बॉन्ड के सेंटर से आपने रीजन के जो है इस तरह दो कोन ड्रा करनी है, और इस कोन के अंदर आपके पास जो है वो डी-शील्डेड रीजन होगा, दैट विल बी डी-शील्डेड रीजन, और जो कोन के बाहर पॉजिटिव है दैट इज ए शील्डेड रीजन। ओके, सो जैसे अगर आपने साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसमें देखना है कि आपके पास ये जो दो हाइड्रोजन है कार्बन 1 पे, इसमें एक कार्बन कोन के अंदर आ रहा है जहाँ पे शील्डेड या डी शील्डेड है, और एक कोन से बाहर है हाइड्रोजन वेयर इट इज़ ए शील्डेड।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन जो एक्सियल पे है दैट इज ए शील्डेड, सो इट विल हैव ए लोअर केमिकल शिफ्ट, लोअर डेल्टा वैल्यू, और जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे है that will have a higher delta value. Why it will be higher? Because that is inside a cone, और inside cone जो सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये इसमें शील्डेड डी शील्डेड रीजन में चला गया। क्वेश्चन, ऑलराइट, now we have just two more factors, hydrogen bonding. so hydrogen bonding जब भी किसी भी हाइड्रोजन के साथ होगी, so that will for example with this oxygen, so both oxygen atom they are electronegative, so they will scavenge the electron density around this hydrogen, so they will make it less screened. So whenever there is hydrogen bonding, result will be de-shielding, और de-shielding की वजह से chemical shift जो है that will move to the larger value, so delta will be larger. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, ये फैक्ट हमने IR में भी देखा था कि अगर आप मॉलिक्यूल को डाइल्यूट कर देंगे और अगर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है बॉन्डिंग है, और इफ दे हैपन टू बी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, then this hydrogen bonding will be gone and we will not see the chemical shift at the larger value. So the chemical shift will revert back to the lower delta value. Whereas in case of intramolecular hydrogen bonding जो कि concentration dependent नहीं होती, that will be always present. So whether you dilute it or not dilute it, that hydrogen bonding will always be there और chemical shift उसकी same रहेगी। अच्छा, लास्ट है वांडरवाल डी शील्डिंग। वांडरवाल में ये है कि अगर आपके पास एक एटम है, लेट्स से एटम ए, एंड इट हैज़ a electron cloud around it, and we have another atom B which also have electron cloud. If they happen to be very close to each other, then electron density of one atom will repel the electron density of other atom. So that means that will push this electron density away and make these atoms to have less shielding. So that will be de-shielded. So van der Waals से हमें क्या होता है कि de-shielding effect पैदा होता है. So in crowded molecule, some proton will occupy sterically crowded position, and that will result in van der Waals repulsion. एंड फॉर एग्जांपल जो बल्की ग्रुप होते हैं, जैसे इस अगर आपका R ग्रुप बल्की है, दैट विल लेट्स से कि यहाँ पे अगर कोई बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप विल लॉक दिस मॉलिक्यूल इन वन कन्फर्मेशन, और अगर R जो है इफ देयर इज ए मेथल, देन इट विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस हाइड्रोजन, और रिजल्ट क्या होगा, दिस हाइड्रोजन विल बी डी शील्डेड, और उसकी वजह से इसकी डेल्टा वैल्यू या केमिकल शिफ्ट इसकी लोअर हो जाएगी, इट विल गो टू द लार्जर केमिकल शिफ्ट. ओके, क्वेश्चन, ऑलराइट. तो ये लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, और ये बेसिकली सम अप है. ये आज आपको पहली दफ़ा ये पूरी स्केल में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ. जो केमिकल शिफ्ट है, ये जो हाइड्रोजन का जितना भी स्पेक्ट्रम है, दैट नॉर्मली रन बिटवीन 0 to 12. ओके, तो इसमें ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं जो हाइड्रोजन 0 के करीब हैं दे आर शील्डेड, जो 12 के करीब हैं दे आर डी शील्डेड, और इनमें जो इनकी टेंटेटिव पोजीशन है वो ऊपर स्कैन की हुई है. जैसे sp3 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है दे आर टिपिकली लाइंग बिटवीन 0 to 2, और उसके बाद अगर किसी sp3 हाइड्रोजन के साथ एरोमेटिक रिंग है, या उसके साथ नाइट्रोजन है, या सल्फर है, या फिर अल्काइनिक बॉन्ड है, या फिर वो कार्बोनिल के साथ अटैच है,
तो इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज ए स्लाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट। तो अगर स्लाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है तो 2 से 3 के दरमियान उसका सिग्नल आपको मिलेगा इस रीजन में। और अगर यानी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, और आपके सारे कार्बन sp3 हैं, they are all sp3 carbon but they are attached with the powerful electronegative group or atoms, their value will be between 3 to 5. Okay, OH depending upon the hydrogen bonding it can range from 0 to 5, और NH के साथ भी यही है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दे आर कॉल्ड लेबाइल हाइड्रोजन्स। तो इनकी वैल्यू हमेशा मूव करती रहती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अल्कीनिक है, ये 4.5 से 7 के दरमियान है, जैसे मैंने पहले बताया है। एरोमेटिक रिंग 7 से 8 के दरमियान है, और उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप है 9 से 10 के दरमियान, एंड देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड बिटवीन 10 to 12। ओके, तो इस रेंज को आपने अपने ब्रेन में इसकी इमेज जो है वो आप फिक्स कर लें कि आपको ये पता हो कि किस केमिकल शिफ्ट पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अपीयर होता है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन वैल्यू को अप्लाई करना शुरू करेंगे, और इसकी जो हाइड्रोजन प्रोटॉन की जो थ्योरी है वो ख़त्म हो गई है। अब हम एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, और बाकी जो 2-3 लेक्चर हैं उसमें हम इसको फिनिश करके कार्बन 13 को टच करेंगे। एनीवे, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस। No question? Excuse me, sir. Yes. Sir, I wanted to ask that inshallah in the next class we will have a quiz. Our quiz. Yes, there will be quiz up to this Okay, lecture. sir. Oh, okay, sir. Acknowledged. And sir, can you please आप upload this lecture by night so we may मैं revise it? अभी अपलोड कर दूंगा ये लेक्चर Thank जो you, है ना, sir. Thank you, sir. इसको मैं आज ही कर दूंगा, बिकॉज वेन एवर देयर इज क्विज आई ऑलवेज पोस्ट द मटेरियल राइट अवे। Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Thank you, sir. Thank you very much. सर LMS के ऊपर पिछले लेक्चर की स्लाइड्स नहीं अपलोड हुई हुई। LMS पे क्या है? लेक्चर नोट, हाँ मैं लेक्चर नोट भी अपलोड कर दूंगा। असल में Okay, sir. जो लेक्चर 21 है वो इतना शॉर्ट था कि मैंने कहा कि इनको इकट्ठा ही 21 और 22 को इकट्ठा ही अपलोड कर दूंगा। चलिए वो सही है आज सर, हो थैंक यू। जाएगा, आज हो जाएगा।